not previous chapter, previous topic, that is specially real gas equation. तो इन रियल गैस हम लोगों ने डेफिनेशन में लिखा था, those gases which are not following ideal gas equation are called as real gas. और हम लोगों ने ये भी बोला था कि मोस्ट ऑफ द गैसेस 99.9 बोल दूं या 90%, 99% गैसेस डू नॉट ओबे ideal gas equation. What was the reason behind that? Reason was that in ideal gas it was considered that there is no interaction between gas molecules. First assumption. Second assumption was molecules का volume of molecules are negligible as compared to volume of container, जो कि ऐसा नहीं है. हमको तो वॉल्यूम ऑफ द गैस लेना है ना, तो हम लोग तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लेकर के चलते हैं हमेशा. हाउ दिस इज राइट? 10 ग्राम को तो 1 लीटर में रखा, 10 ग्राम को 20 लीटर में, तो अभी भी 220 और 10 लेकर के चल रहा है. बट रियल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज समथिंग डिफरेंट विच वी आर नॉट कंसिडरिंग, है ना. एंड टोटल प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू collision between molecules and wall of container. ये assumptions था. That's why if you are considering these points and make some necessarily change in terms of pressure, in terms of volume, you will get real gas equation. Means ideal gas will change into real gas equation. So there were two factors which you have to correct. One is pressure factor, and second one is volume factor. Pressure factor and volume factor. So pressure correction you can say, and volume correction in ideal gas equation. In ideal gas equation. Now pressure correction is depending on again two factors. First one was collision factor, जो कि मैंने कल उस दिन एक्सप्लेन करके दिया था. कोलिजन फैक्टर फर्स्ट, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? व्हाट वाज इन कोलिजन फैक्टर स्पेशली? नाउ दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इन बिटवीन वॉल ऑफ कंटेनर, they will collide with molecules, so its effect will be cancelled out. But those molecules which are nearer to the wall of container, if they are colliding, then their effect will not be cancelled out. ठीक. इसका मतलब है कि प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जितना ज्यादा होगा, हायर इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, greater will be the pressure, greater will be the pressure. But at the same time, what we have decide, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था भाई? हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि if यही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सपोज 100 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 5 लीटर and 100 molecules are present in 10 liter, so number of collisions per unit volume कम हो जाएगा. जिसमें वॉल्यूम ज्यादा है उसमें कोलिजन्स कम होंगे, इसलिए हम लोगों ने लिखा था ऐसा, है ना. दिस इज फर्स्ट वन. यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? इन लास्ट लेक्चर आई वाज डिस्कसिंग ऑल दीज पॉइंट्स इन डिटेल. प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो. नो प्रॉब्लम. वेरी गुड, वेरी गुड. आ जाओ भाई. अगर प्रॉब्लम नहीं है तो इसी का लिखो. सेकंड फैक्टर इज, first one was collision factor and second one interaction factor. Please. Second one interaction factor, please.
n is not the number of collisions, n is number of atoms या number of moles. So we are considering n is number of moles. Okay, किसी को प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो डिफाइन करो, n is number of moles. n is number of moles of particles या molecules. तो particles may be atom, may be molecule, may be compound, whatever placed in the container. n is number of particles. आ जाओ भाई, interaction factor. So please write down statement. Please write down statement. लिखो statement में, लिखो in ideal gas, in ideal gas it was considered, fast, write down fast. In ideal gas it was considered that, in ideal gas it was considered that there is no interaction between gas molecules. There is no interaction between gas molecules, which is not true, which is not true, which is not true if gas molecules are, if gas molecules are, if gas molecules are, if gas molecules are polar in nature, polar in nature, polar in nature, then they can, then they can interact, then they can interact, they can interact, they can interact and 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 even all molecules of gases, even all molecules of gases can interact with each other, and even, and even, हाँ मैं बताता हूँ आर्या, पोलर का मतलब क्या है, वो सारी चीजें आई विल टेल यू इन डिटेल. ठीक, अभी मुझे समझ में नहीं आएगा, इस चैप्टर के लास्ट में आएगा पोलर नॉन पोलर, एंड इवन इन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में यू विल गेट पोलर एंड नॉन पोलर नेचर, ज्यादा समझ में आएगा. ओके, इवन ऑल मॉलिक्यूल्स कैन रिपेल, या जो भी लिख लिया था हम लोगों ने, मॉलिक्यूल्स कैन रिपेल ईच अदर, ऐसा करके लास्ट स्टेटमेंट, कैन इंटरेक्ट ईच अदर. आ जाओ भाई. So considering interaction factor, so considering interaction factor, so considering interaction factor, so considering interaction factor, so considering interaction factor for pressure, for pressure, ठीक, वेरी गुड हो जस, तेरा वीडियो तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है. आ जाओ भाई. Again, if these molecules are within wall of container, means in between wall of container, then if suppose they are attracting, suppose they are repelling,
again there will be no effect on molecules. There will be no effect on the molecules if they are interacting with each other and they are in between wall of container, because all the factors means they are in all the direction, that will be nullified. That must be nullified. So those molecules which are in between container, wall of container, their effects means attraction or repulsion will be cancelled out. Why? Because in all direction atoms are present in the surrounding. But again, those molecules which are nearer to wall of container, their interaction will not be cancelled out, because left side molecules are, suppose this one side, left side molecules are present but right side wall of container, this side right side molecules are present but left side wall of container is present. So these effects are not cancelled out. Now जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन होगा. अगेन सेम थिंग. What same thing? Suppose you are experimenting all these things in 5 liter container and next experiment is taken in 20 liter of container. So definitely number of molecules per unit volume will decrease. So this pressure is directly proportional to number of molecules interacting and inversely proportional to volume. So pressure will be again directly proportional to N by V. Ha ya na? So please write down statement. So please write down statement. Please write down statement. Write down statement. लिखो those molecules which are in between wall of container. Those molecules which are in between wall of container. Those molecules which are in between wall of container. Those molecules which are in between wall of container. Those molecules which are in between wall of container. Their attraction and repulsion factor. 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 हाँ मैंने बोला था those molecules which are in between wall of container. Those molecules which are in between wall of container, their attraction and repulsion factor are cancelled out. Those molecules which are in between wall of container, their attraction or repulsion factor is cancelled out. Their attraction and repulsion factor is cancelled out. Their attraction and repulsion factor is cancelled out. Their attraction and repulsion factor is cancelled out. But those molecules which are but those molecules which are but those molecules which are nearer to हाँ लिखो लिखो वेदांग, पहले लिख लो, पहले लिख लो.
those molecules which are nearer to wall of container, those molecules which are nearer to wall of container, those molecules which are nearer to wall of container, their interaction factor, their interaction factor, their interaction factor is not cancelled out. 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 So, pressure exerted by the molecules. 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 Pressure exerted by the molecules are directly proportional to number of moles. Are directly proportional to number of moles and inversely proportional to volume. And inversely proportional to volume. ठीक, तो वेदांग इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने टॉप एंड बॉटम के कंटेनर का वॉल नहीं दिखाया तो इसको कंसीडर नहीं करना है, सबको करना है। दो को दिखाया इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दो ही कंसीडर करना है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सब। ठीक, तो ऐसा लिखो प्लीज। अच्छा, दर्शन ने पूछा था, ठीक है ठीक है। हाँ, बोल रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फैक्टर्स। अरे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फैक्टर है और एक कोलिजन बिटवीन द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स था, नॉट कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, कोलिजन बिटवीन वॉल ऑफ कंटेनर था। एक्सप्रेशन सेम आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों में डिफरेंस नहीं है। हाँ साइली, directly proportional to number of moles of gas, directly proportional to number of moles of gas and inversely proportional to volume of gas या volume of container. हाँ, अभिदा बोल रहे हैं सर बट कोलिजन विल हैपन ड्यू टू अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ओनली ना। नो, ये तुमसे किसने बोल दिया? ये मॉलिक्यूल आकर के कोलाइड कर रहा है अट्रैक्शन की वजह से क्या? ऐसा कौन सा अट्रैक्शन पावर है वॉल में? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोलिजन बिटवीन वॉल ऑफ कंटेनर में कोई नो अट्रैक्शन फैक्टर। अच्छा, यहां पे जो कोलिजन हो रहा था वो क्या हो रहा था? इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स का कोलिजन वो कैंसल आउट हो जा रहा था, बट दोज मॉलिक्यूल्स विच आर इन बिटवीन वॉल ऑफ कंटेनर, उनके उनके बीच का इंटरेक्शन दैट विल नॉट बी कैंसल आउट। अब बोलो, क्वेश्चन फायर सेशन। हाँ हो गया सब लोगों का, वेरी गुड। और भी किसी का है क्या? हर्षित, गाइस कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। हाँ, मृतिका बोल, मृतिका काहीच प्रॉब्लम आहे का? भाई इस क्लास में अभी कुछ लोग 9th के भी हैं, कुछ लोग 10th के भी हैं, बाकी सभी लोग 11th के हैं। तो जो लोग
जेई एडवांस के लिए अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो 9th में भी हैं, 10th में भी हैं, और बाकी तो 11th वाले हैं ही सब, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जिसको जहाँ पर भी नहीं आया प्लीज आस्क मी। तो अब लिखो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, या लिखो कंबाइनिंग 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 कोलिजन फैक्टर एंड combining collision factor and interaction factor, combining collision factor and interaction factor from equation first and second, from equation first and second we will get we will get we will get चलो आ जाओ। अब मैं तुमको 9th क्लास में लेकर के चलता हूं सभी लोगों को। न्यूटोनियन फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तुमने पढ़ा होगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m1, force is directly proportional to mass m2, force is inversely proportional to square of distance between them। अगर ऐसे ढेर सारे प्रोपोर्शनैलिटी आते थे तो मैं सबको करता क्या था, कुछ नहीं बल्कि मल्टीप्लाई कर देता था, है ना। सो सेम थिंग इज हियर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of moles, pressure directly proportional to number of moles divided by volume, this is n square upon v square, क्योंकि बाय द वे दोनों सेम थे। प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो कोई एक कांस्टेंट आएगा। सो नाउ वी आर सेइंग कि दिस इज नाउ p increased, now make subscript p increased, earlier also this is p increased, last one p increased, चेंज करो सभी जगह तुम लोग भी, p increased p increased p increased। why p increased? क्योंकि मैं इन सबको कंसीडर ही नहीं किया था आइडियल गैस में। आओ व्हाट इज a, व्हाट इज a? हाँ, अरे आर्या मैं भी वही बोलने जा रहा हूं। व्हाट इज a? a is van der Waals, now I am using word parameter not constant, कांस्टेंट बोल सकता था बट आई एम सेइंग पैरामीटर। कैन एनीवन टेल मी, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट जिन लोगों ने मैथ्स लिया है, हो सकता है मैथमेटिकल इंडक्शन 11th क्लास में खत्म कर लिया होगा। रितायन, मैथमेटिकल इंडक्शन खत्म हुआ? बोल रहे भाई। वेदांग सर थोड़ा ठीक है, थोड़ा थोड़ा हुआ है तो वहां पर याद, फिर कोई बात नहीं, हमने इक्वेशन का नाम सुना होगा, आइडेंटिटी का नाम सुना होगा, ऐसे ही कांस्टेंट एंड पैरामीटर। तो पैरामीटर एंड कांस्टेंट में डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस? स्लाइटली डिफरेंस, दिखने में बिल्कुल सिमिलर है। तुम लोगों ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा होगा, कैपिटल जी, न्यूटन्स कांस्टेंट जो भी था, ठीक है ना। ए इज वंडरवॉल्स पैरामीटर, जी इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अभी तुमने आर पढ़ा था, कोई भी गैस ले लो आइडियल गैस इक्वेशन में, दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट 0.082, that will be always constant whatever is the gas। but तुमने स्मॉल जी पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमेशा कांस्टेंट है क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है क्या? ये 9.8 अभी है, बट अगर 10 किलोमीटर में ऊपर चला जाऊं तो ये जी हो सकता है कम हो जाए।
10 किलोमीटर अर्थ के नीचे चले जाओ तो हो सकता है चेंज हो जाए, बट पूरे यूनिवर्स में पूरे अर्थ पर अगर एक सर्टेन हाइट पे रहूं तो इट विल बी कांस्टेंट एवरीवेयर। इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट तो है उस हाइट पर, बट ये चेंज हो जाएगा हाइट चेंज करते ही, है ना। बट कैपिटल जी पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी चला जाए वो चेंज नहीं हो रहा है, हाँ या ना। तो कैपिटल जी इज कॉल्ड एज कांस्टेंट, स्मॉल जी इज कॉल्ड एज पैरामीटर। एनी प्रॉब्लम? दो दिस इज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स, बट फिर भी। अरे वंडरवॉल्स इक्वेशन मैंने नाम ही नहीं लिया, अरे बाबा कहां से आ गया वंडरवॉल्स इक्वेशन रिपीट करूं मैं? दिस इज सिंपली कॉल्ड एज वंडरवॉल्स पैरामीटर। दिस इज कॉल्ड एज वंडरवॉल्स पैरामीटर, नाम है सिर्फ। अब मैं ये बोला था कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर इज कांस्टेंट फॉर दैट गैस, but for different gas it will change, just like small g at a particular height on this earth it will be always constant, but if you are changing the height, value of small g will change, okay। same thing, same thing, suppose CO2 ले ले, CO2 के लिए a का वैल्यू विल बी कांस्टेंट, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि NH3 के लिए भी a का वैल्यू सेम होगा, नो। तो फॉर डिफरेंट गैसेस इट इज कांस्टेंट, for different gases it is constant, but gas to gas it will change। तो तुमको अगर बुक में कांस्टेंट वंडरवॉल्स कांस्टेंट लिखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमको समझना है कि इट विल बी बेटर इफ यू आर राइटिंग इट इज अ पैरामीटर। एनी प्रॉब्लम प्लीज? गायत्री, बहुत ही अच्छा फोटो लगाया है तुमने फ्रेम अपने घर में, वेरी गुड। गायत्री का घर बहुत ही अच्छा है भाई। ये मैं अब रब कर दिया जो रेफरेंस में लिखा था, ठीक। अब बोलो, का इस प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेट इंटरनेट इन सब का इशू आता है तो फिर से ज्वाइन करो बार बार सब लोग। नाउ नेक्स्ट हेडिंग प्लीज, वॉल्यूम करेक्शन। नेक्स्ट हेडिंग वॉल्यूम करेक्शन। नाउ नेक्स्ट हेडिंग वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन, ठीक। सो फर्स्ट राइट डाउन द स्टेटमेंट प्लीज। इंटरनेट इशू आता है फिर से ज्वाइन करो सब लोग बार बार। लिखो। और ये सब हमारे टेक्स्ट बुक में जो दिया है इसकी सेफ्टी है कि तुमको समझ में नहीं आएगा, और तुम अपने फ्रेंड से पूछो, रियल गैस इक्वेशन हुआ ही नहीं है। अब दूसरी कोचिंग वाले लोग धीरे धीरे करके फोन करना स्टार्ट कर रहे हैं कि सर वहाँ बहुत फास्ट जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे 12th में आपके यहाँ पे एडमिशन लेना है। अब धीरे धीरे करके स्टार्ट हो रहे हैं लोग, पहले नाम सुन करके भाग गए थे, वो भी ऐसी जगह भाग के गए जहाँ न्यूमेरिकल होता ही नहीं और IIT का प्रिपरेशन कर रहे हैं। वाह, दिस इज द बिगेस्ट आयरनी। Without solving numericals, they want to crack JEE Mains, which is next to impossible। आ जाओ भाई वॉल्यूम करेक्शन में, लिखो अगेन प्लीज, राइट अगेन। लिखो इन आइडियल गैस इक्वेशन, इन आइडियल गैस इक्वेशन
in ideal gas equation, it was as so yeah, in ideal gas it was assumed that molecular volume molecular volume of gas molecular volume of gas molecular volume of gas are negligible molecular volume of gas are negligible as compared to as compared to as compared to volume of container as compared to volume of container as compared to volume of container ठीक है ना but but if certain volume of container if certain volume of gas but 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 at a certain volume of but at a certain volume of gas but at a certain volume of gas at a certain volume of gas certain volume of gas is compressed is compressed is compressed then is compressed then after certain time after certain time but after certain time it will not be compressed it will not be compressed it will not be compressed will not be compressed will not be compressed will not be compressed means gas molecules are having certain volumes means gas molecules are having certain volume means gas molecules are having certain volume which cannot be neglected which cannot be neglected which cannot be neglected so volume volume factor so volume factor volume factor of ideal gas equation must be changed so volume factor of ideal gas volume factor of ideal gas equation must be changed
ठीक, चलो भाई आ जाओ सभी लोग। इसके पहले हम लोग क्या करते थे, इसके पहले बिफोर दैट, सपोज इसमें मैंने 1 ग्राम गैस रख दिया 10 लीटर में, तो 10 लीटर ले लिया। 1 ग्राम ही गैस 50 लीटर में रख दिया तो 50 लीटर ले लेता था। बट ऐसा कहाँ है, हम लोग तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस कहाँ ले रहे हैं, है ना। तो अब मुझे वॉल्यूम ऑफ गैस लेना है। हाउ वॉल्यूम ऑफ गैस इज टू बी टेकन, suppose this is volume of container and these are the gas molecules। अगर ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो let us assume that कि they are gas molecules, okay। if they are gas molecules तो molecules का वॉल्यूम मुझे लेना है। अगर गैस का मॉलिक्यूल लेना है, सपोज दे आर फ्री स्पेस, जो व्हाइट मैं कर रहा हूं इधर मॉलिक्यूल्स नहीं है, बट स्टिल यू आर कंसिडरिंग दैट वॉल्यूम, है ना। तो दिस इज फ्री स्पेस, दिस इज फ्री स्पेस, ठीक है ना। दिस इज फ्री स्पेस, मुझे इन सबको एक्सक्लूड करना है, मुझको इन सबको एक्सक्लूड करना है। तो अगर V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर और V माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोला करता हूं मैं, अगर V माइनस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का दिया तो व्हाट यू विल गेट एक्चुअली, वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, हाँ या ना। अब तुमको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम यू हैव टू कैलकुलेट। तो मैंने एज्यूम किया, थोड़ा सा हम लोग जेई एडवांस के लिए जा रहे होते तो डेफिनेटली मैं पूरा इसको डिराइव भी करके देता, बट अभी के लिए मैंने बोला कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऐसा बोल रहा है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम अगेन किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। या तो फिर इसको छोड़ दिया मैंने, अभी कोई नोट नहीं करेगा, इधर देखो बाद में लिखना, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर पर मोल मतलब 1 मोल के लिए मैंने एज्यूम किया कि दिस इज बी। ऐसे ही बी क्या होता है मैं इसका डेरिवेशन नहीं दे रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं अभी, हाँ। तो मैंने लिखा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर n मोल्स, कितना हो गया NB। तो what will be the gas volume, that will be volume of container minus excluded volume, that is V minus NB। तो अभी थोड़ी देर के लिए तुम B को एज्यूम करके चलो कि दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम 1 मोल के लिए, वैसे ही n मोल के लिए कितना हो जाएगा NB। सो प्लीज राइट, प्लीज राइट, जितना भी लिखवाया है मैंने सब लिखो, और ये डायग्राम भी बना लो तो और भी अच्छा है। नोटेड, वेरी गुड।
हो गया क्या प्लीज? वेरी गुड, डन। तो हाँ, देखता हूँ ना, मैं बता तो रहा हूँ, अभी सब बता रहा हूँ धीरे धीरे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट। चलो भाई, सब लोग थोड़ा सा फिर से पीछे जाओ, जहां पे वंडरवॉल्स पैरामीटर लिखा था अब जाओ। जहां पर वंडरवॉल्स पैरामीटर लिखा था वहां पर जाओ। 1 minute प्लीज, देयर इज सम प्रॉब्लम, आई डोंट नो। मैं बैक नहीं जा पा रहा हूँ। अच्छा गया, देखो पहले ऐसा नहीं होता था। आई डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। लास्ट स्लाइड। हम्म चलो भाई, थोड़ा सा सभी लोग प्लीज पीछे वाले स्लाइड पे जहाँ जाओ, जहां पर तुम लोगों ने लिखा था P इंक्रीज इक्वल्स टू, पीछे स्लाइड जाना है, पीछे पेज पर ऐसा लिखा था। अब आओ, तो प्रेशर वहीं पे लिखो, इसके आगे ये आइडियल गैस वाला और ये इंक्रीज्ड। वहां पर लिख लिया। ये तुमको पीछे पेज पे जाकर के लिखना था, ये तुमको पीछे पेज पे जाकर के लिखना था। आई डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। ओके, हाँ, यहाँ पे लिखना था वंडरवॉल्स पैरामीटर, जहां पे लिखा है ना वहां पर लिखो प्लीज। ओके, डन, वेरी गुड। अब आओ, उसके आगे प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट लिखो, कंबाइनिंग, प्लीज राइट कंबाइनिंग प्रेशर करेक्शन, एंड वॉल्यूम करेक्शन, सर ये कहाँ पे लिखना है? वॉल्यूम करेक्शन ऑफ आइडियल गैस। ऑफ या फिर मैं हटा ही दूं? मैं बताता हूँ सर ये क्यों। कहाँ लिखना है? प्रेशर करेक्शन, हाँ बोलो। ये कहाँ लिखना है? ये अभी ये जो लिखा था ना प्रेशर करेक्शन, ये तो पहले वाले पेज पे जाना था। उस पेज के बाद अब आ जाओ, वॉल्यूम करेक्शन के बाद लिखो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सब लोग प्लीज, इंटरमिक्स नहीं करना है, थोड़ा सा देयर इज सम प्रॉब्लम प्लीज। हाँ, फिर से ध्यान से सुनो, जहां पर तुम लोगों ने प्रेशर पी एन स्क्वायर इक्वल्स टू पी इंक्रीज इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर लिखा था, उसी के जस्ट आगे लिखना था प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल्स टू पी प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। उसके बाद फिर से वापस आओ, कंटिन्यूटी बना करके जहां पे वॉल्यूम करेक्शन लिख लिया था उसके बाद। ठीक, अब लिखो, कंफ्यूज नहीं होना है। कंबाइनिंग
pressure correction and volume correction. कॉमा लगा के लिखा आइडियल गैस इक्वेशन चेंजेस इनटू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ideal gas equation changes into ideal gas equation changes into आ जाओ। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या था? आइडियल गैस इक्वेशन जहां लिखा था वहां लिखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी चेंजेस इनटू पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। हाँ आदित्य, आदित्य वेरी गुड। Now this is real gas equation. What is A and B? Van der Waals parameter. Van der Waals parameter. अरे प्रणव लास्ट पेज पे जा नहीं पा रहा हूँ, यही तो प्रॉब्लम आ रहा है ना थोड़ा सा आज। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, बीच बीच में चला जा रहा है। चलो बच गए। यही बोल रहे थे और इसके पहले भी जाना है। वाह बच गए। मैं यहाँ पे बोल रहा था, लिखना था P इक्वल्स टू या प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल्स टू P प्लस एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, देन इसके बाद से जस्ट लिखना स्टार्ट करना था। ठीक, वो हमने यहाँ पे लिखा है। एनी डाउट प्लीज? अब समझ में आया? सोहेश बोले थे सब कुछ समझ में आया, बट ये यूज कहाँ करना है? तो पहले मैं आइडियल गैस लेता था, दिस इज कॉल्ड एज रियल गैस। ओके, सारे गैसेस इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। आईआईटी 78 में फर्स्ट टाइम पूछा, सोचो 78 में फर्स्ट टाइम पूछा। तुम लोग लग रहा हो कि क्या बात है भाई, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग के टाइम पे रियल गैस इक्वेशन कोर्स में नहीं था, और ये आईआईटी में 78 में पूछा गया। मतलब हम लोगों से भी कम से कम 20 साल पहले। तो अब क्या पूछा था? फॉर 1 मोल रियल गैस विल बी। तुमको अभी लगेगा कि कितना सिंपल पूछा, बट ये रियल गैस इक्वेशन हार्डली 10 इयर्स बिफोर इंट्रोड्यूस किया गया, इसके पहले था भी नहीं। एंड महाराष्ट्र में तो अभी जस्ट 4-5 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ, वो भी टीचर्स वगैरह ढंग से नहीं करा रहे हैं। सो दिस बिकम ये सिंपल है, बट 98 के लिए, सॉरी 78 के लिए तो वाज टफेस्ट वन, क्योंकि उनको नहीं पता था कि रियल गैस क्या होता है। दैट वाज द बियॉन्ड द कोर्स। अब मेरे पास ईच एंड एवरी कंपटीशन आईआईटी ने बहुत पहले दिया, 93, 94, फिर नीट जेई में सब जगह पूछा। कौन मुझे बताएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए एंड यूनिट ऑफ बी? हु विल टेल मी यूनिट ऑफ ए एंड यूनिट ऑफ बी? सब लोगों ने फिजिक्स पढ़ लिया है। हाँ वेरी गुड, कौन बता रहा है भाई?
अच्छा यूनिटलेस क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है। अभिदा बोल रहे हैं बी इज लीटर। पहले ए का मुझे बताओ। अभिदा पहले ए का बता। बी का लीटर बोला वो भी रॉन्ग है बाय द वे। गाइस घाई नहीं। वेरी गुड। दर्शन बोल रहे हैं एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल। भाई स्क्वायर था स्क्वायर। ओके। श्रीकांत बोल रहे हैं मोल का स्क्वायर पर लीटर। श्रावणी बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में तो चार्ज होता है, चार्ज है ही नहीं यहाँ। नो। लीटर पर मोल। पहले मुझे ए का बताना है। ए का लीटर पर मोल इज रॉन्ग। प्रणव सोचो। फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। और मुझे पता है बड़े नामे नामे फिजिक्स टीचर के पास लोग पढ़ रहे हैं। लीटर पर मोल फॉर बी इज करेक्ट, बट मैंने बोला ए के लिए बताना है। एटमॉस्फियर लीटर स्क्वायर मोल का स्क्वायर। दर्शन ये सही हो सकता है। चलो भाई आ जाओ, मैं बताता कैसे। नो दिस इज रॉन्ग प्रणव। आ जाओ भाई सभी लोग देखो। अरे कैसे यूनिट को निकालता हूं रे बाबा। मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन पढ़ा होगा फिजिक्स में। अरे मैं केमिस्ट्री का होकर के इतना फिजिक्स बोल रहा हूँ रे बाबा। तो ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वॉट एवर इज यूनिट ऑफ प्रेशर विल बी द यूनिट ऑफ एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर मस्ट बी सेम, है ना। इफ टू क्वांटिटीज आर एडेड सब्सट्रैक्टेड, आइदर एडेड आइदर सब्सट्रैक्टेड, देयर यूनिट मस्ट बी सेम। तुम लीटर को तुम लीटर को तुम टाइम में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? मैं बोल दूं क्या 1 लीटर में आधा घंटा सब्ट्रैक्ट किया कितना बच गया? ऐसा तो नहीं बोल सकता ना। तो यूनिट मस्ट बी सेम। No. इसलिए P इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। भाई मैंने पहले भी बताया था कि कैसे निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? प्रेशर का एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम का लीटर का स्क्वायर, और नीचे मोल का स्क्वायर। बी का बोलो जल्दी से। प्रॉपर एनालिसिस in all competitive exam it has been already asked। तो मैं लिखता था v माइनस एन बी ये इक्वल है, इसलिए तुम b इक्वल्स टू क्या लिख सकता था? v माइनस एन। इसलिए यूनिट इसका हो जाएगा लीटर मोल के पावर -1। प्लीज राइट, इंपॉर्टेंट वन। हाँ। मैंने तुम लोग को पहले ही बोला था केमिस्ट्री के टीचर्स की मैथमेटिक्स बहुत वीक होती है। बिकॉज तुम चाहो तो पता करके देख लो, वो तुमको बोलेंगे कि मैं एमएससी हूँ पीएचडी हूँ, बट पता चलेगा कि उन्होंने ऑर्गेनिक से किया है या इनऑर्गेनिक से किया है, फिजिकल से नहीं किया है। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब है मैथमेटिक्स, अलॉट ऑफ मैथमेटिक्स वो कर ही नहीं पाए। आ जाओ भाई आगे आ जाओ। इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ फॉर रियल गैस? इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ फॉर रियल गैस? Sir, Sir, can you please हाँ show बोलो। the last slide? अच्छा लास्ट स्लाइड देखते हैं। कितने लकी हो तुम लोग। वाह, बच गए। हाँ बोलो। लास्ट स्लाइड को क्या करना है? निकाल के बाहर फेंक दूं? अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। हर्षित सर। लास्ट स्लाइड को बाहर निकाल के फेंक दूं? बहुत परेशान कर रहा है। हाँ सर।
बोलो भाई, बोले हर्षित, बोले बाहर ही निकाल के फेंक दो, इतने सारे प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं। Shall I move to next page, please? The most important part. आ जाओ भाई। किसी ने पूछा था कि सर क्या रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन की तरह बिहेव करेगा क्या? यस। अगेन आईआईटी ने बहुत पहले पूछा, नीट 2019 ने पूछा, जे में 2015-16 ने पूछा कि व्हेन रियल गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस, करना है क्या? या मैं एक्स्ट्रा लेक्चर में देखूं? यस, बोल रहे हैं करना है, वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ भाई। अच्छा, चलो चलो आ जाओ, बोल रहे हैं नाउ, अभी देखना है। ठीक है, ठीक है। वेदांग बोल रहे हैं सर एक्स्ट्रा लेक्चर लेते कब हैं? अरे बताते ना रे बाबा। आ जाओ भाई, केस नंबर 1 लिखो, प्रॉब्लम लिखो। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रियल गैस इक्वेशन, derive the expression for real gas equation, derive the expression for real gas equation, derive the relation for real gas equation. Case number 1 लिखो, when pressure is very high, when pressure or temperature is very high. Case number 2, when pressure or temperature is very low. ये 4 क्वेश्चन बन गए। केस नंबर 1 व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई, केस नंबर 2 व्हेन टेम्परेचर इज वेरी हाई। दोनों का मीनिंग सेम है, बट दोनों पे प्रॉब्लम आए हुए हैं। केस नंबर 1 व्हेन प्रेशर और टेम्परेचर इज very high. This is the real gas equation. अब आ जाओ, when pressure is very high, ये कैसा हो गया? P plus an square upon v square. Pressure is very high. मैं स्मॉल क्वांटिटी, तुमसे मैं बोल दूं कि अभी जैसे चाइना वगैरह और इंडिया का LAC पे हो रहा है, खूब न्यूज सुनते होंगे, वहां पे बात 1 मीटर 2 मीटर की नहीं होती है, वहां पे किलोमीटर्स में होती है कि 10 किलोमीटर आ गए अंदर, 10 किलोमीटर चले गए। लेकिन मैं तुमको पुणे में बोल दूं या मुंबई में बोल दूं, बेंगलोर में बोल दूं कि 1000 स्क्वायर फीट का एक जमीन खरीदनी है तुझे, प्लॉट, जहां पर 10,000 स्क्वायर फीट है उसकी कॉस्ट। अगर 10,000 स्क्वायर फीट है तो तू क्या 1 फीट भी छोड़ेगा क्या? 1 इंच भी छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा ना। तो कहने का मतलब है दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटी। स्पेस में मैं बात करूं तो 100-100 200 किलोमीटर की बात होती है,
है ना अप्रोक्सीमेशन। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ है। एक क्वांटिटी वेरी स्मॉल, तो उसके रेस्पेक्ट में मैं स्मॉल वाले को क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट। क्यों? P इज वेरी हाई। ठीक। सो P प्लस an अपॉन बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू P। ये हमारे टेक्स्ट बुक वगैरह में नहीं दिया है, बट दोज हु आर इन CBSE बोर्ड स्कूल कॉलेज उधर कभी कभी आते हैं 11th क्लास में ही। और दिस वन वाज आस्क्ड इन IIT, नीट, CET, सभी जगह। तो इक्वेशन बिकम, लिखते जाओ, P V माइनस NB इक्वल्स टू NRT। हो गया? एवरीवन रिटन डाउन? यस, डन। अरे वही रियल गैस चेंजेस इनटू दिस वन, कौन लिख रहा है कि ये ब्रैकेट में? साक्षी। अरे प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, दैट इक्वेशन चेंजेस इनटू दिस वन। ठीक। an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इज नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू p। सर हाँ। अच्छा, टेम्परेचर रहेगा, बिल्कुल रहेगा, NRT रहेगा। यस, NRT होगा, NRT डेफिनेटली होगा। चलो आ जाओ, केस नंबर सेकंड। हाँ, NRT ही होगा। जान ले लो बच्चे की एकदम से। मैंने गलत क्या लिख दिया? सबको मौका मिल गया, एक हफ्ते का पूरा। मैंने लिखा इफ, केस नंबर 2, इफ प्रेशर और टेम्परेचर इज, प्रेशर इज वेरी लो। अभी हमने पढ़ा है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इफ प्रेशर इज very low, volume will be very high. If volume is very high, तो V minus NB में NB can be neglected। क्यों? क्योंकि इस बार वॉल्यूम बहुत बड़ा है। ठीक है ना? So V minus NB can be written as V. So this real gas equation changes into
P plus an square upon v square, एन बी 0 हो गया, 1 मोल रख दूंगा तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो P इंटू वी an स्क्वायर अपॉन v इक्वल्स टू nRT। हाँ तो प्रेशर भी वेरी लो ना है। क्या बोल रहे हैं भाई कि if volume is very high then an upon v square, an square upon v square is also very low, तो प्रेशर इज वेरी लो एंड वेरी लो क्वांटिटी में से वेरी लो क्वांटिटी को मैं नहीं कर सकता, मैं यही तो समझा रहा था। प्रेशर इज वेरी लो, an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इज वेरी लो, तो मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर को, दोनों लो क्वांटिटी है। ये दोनों मेरे पास कंडीशन आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम में, व्हेन प्रेशर इज वेरी लो, व्हेन प्रेशर इज वेरी हाई। सर लास्ट में वो एनआरटी आएगा ना? हाँ भाई एनआरटी होगा, ये लो जग रहे हैं सभी लोग, इसका मतलब। Sir, what about temperature? Temperature is very low. Either pressure, either temperature is very low. ठीक, इसका मतलब है कि at very high temperature and low pressure पर real gas will tends into ideal gas। लिख लो, फिर से मुलाकात होगी जेईई मेंस में एंड नीट में। जेईई मेंस, नीट, सीईटी में क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, हो सकते क्या है, होते हैं। एक बार क्या, 2 बार आ सकते हैं, 3 बार आ सकते हैं। So at very high temperature and very low pressure, real gas will tends to ideal gas, real gas will tends to ideal gas। real gas will tends to ideal gas। ठीक है, तो भाई सभी लोग प्लीज। हाँ सर, प्रेशर इज हाई का मतलब कितना हाई? वो अमाउंट ऑफ गैस वगैरह के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं कि वेरी हाई का मतलब वेरी हाई ही हो गया। अमाउंट ऑफ गैस कितना लिया है उसके रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, सो प्लीज। हाँ, ऐसे डिसाइड नहीं होगा ना, वही तो मैं बोला, अमाउंट ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगा ना। ओके, तो प्लीज राइट डाउन हेडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b। significance of small a and small b, significance of
स्मॉल a एंड स्मॉल b, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक, अब बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो। जल्दी बोलो, काहीच प्रॉब्लम आहे का? हाँ, एट वेरी हाई टेम्परेचर मीन्स, हाँ एट वेरी हाई टेम्परेचर मतलब वेरी हाई प्रेशर। हाँ, वेरी हाई प्रेशर का मीनिंग होता है वेरी हाई टेम्परेचर भी, आइदर वेरी हाई टेम्परेचर वेरी हाई प्रेशर, दोनों में से कोई एक यूज करेगा। हाँ बोलो ईशान, क्या डाउट है? प्लीज टेल मी।